Okay, welcome to our group presentation. My name is Evans K. Maritu, and my group members include Boniface Muindi, Dennis Furkat, Philip Moro, and Rogers Kibnet. And our presentation involves material collection and preparation. We start with Pozzolana. A sample of Pozzolana was collected from East African Portland Cement Company, Quarry. They were thoroughly cleaned before use to ensure the dust and other form of impurities that could affect hydration and bonding of cement, water, paste are removed. At the lab, the sample was sieved to obtain the sample passing 500 micrometer sieve. Determination of specific gravity. We look at objective, and the objective is to determine the specific gravity of Pozzolana. We look at also the apparatus and materials, which we look at the piconometer, weighing balance, oval, test procedure. The weight of clean piconometer was determined and recorded as W subscript P. 300 grams of dry sample was placed in the piconometer and the weight recorded as WPS. Distilled water was added to fill the piconometer to the mark while making sure no air was being trapped. The sample was allowed to soak for 10 minutes. The service of piconometer. Data presentation. Under data presentation, we look at the weight of piconometer, which is equivalent to 719 grams. The weight of sample and piconometer, which is equivalent to 1,228 grams. Weight of soaked piconometer, which is 1,829 grams. Weight of piconometer containing water without sample, which is equivalent to 1,600 grams. And we have right here the calculations. We start with the specific gravity, which we have right here. Now go to the fine aggregates. Under the fine aggregates, we have the sieve analysis and grading of fine aggregates. The sieve sizes in general used for practical distribution of fine aggregates were: the first was 10, second was 5, third is 2.36, fourth 1.18, we have 0.3 and 0.15 millimeters. Procedure. This test consists of dividing up and separating by means of a series of sieves named above. A material into several particle size classification of decreasing sizes. The mass of particles retained on various sieves was relative to the initial mass of the material. The cumulative percentages passing each sieve were reported in numerical and graphical form. We have the data presentation table, as you can see there. The first column, we have the sieve sizes in millimeters, the mass retained in grams, that is column 2. Column 3, we have the percentage retained. Column 4, we have the percentage or the percent passing. Right here we have the line graph, and we have the chart title there. Cost aggregates. One created natural aggregates was obtained from university laboratory. Aggregates passing 20 millimeter sieve were obtained. 10 millimeter sieve was used in this research.
सिविलपीडिया में आपका स्वागत है। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पोज़ोलानिक एक्शन एंड व्हाई वी यूज इट। तो आज हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या है, पोज़ोलानिक एक्शन क्या है और उसका यूज़ क्या है वो समझने की ट्राई करेंगे। तो व्हाट इज पोज़ोलाना, पोज़ोलाना क्या है। तो पोज़ोलाना जो है वो सिलिशियस और एल्यूमिनियस मटेरियल है। तो अपना पोज़ोलाना जो भी है वो सिलिशियस और एल्यूमिनियस मटेरियल है। दिस मटेरियल्स आर कलेक्शन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वेरियस इंडस्ट्री जो होती है वहाँ का वेस्ट मटेरियल जो भी होता है उसको हम एज अ पोज़ोलानिक मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पहला बेनिफिट हो गया कि वेस्ट प्रोडक्ट को हम रिड्यूस करते हैं और उसे हम एज अ पोज़ोलानिक मटेरियल यूज़ करते हैं। तीसरा, वी यूज़ द पोज़ोलाना सीमेंट प्रोडक्शन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द सीमेंट। जब भी हम सीमेंट प्रोडक्शन में पोज़ोलानिक मटेरियल का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो है वो सीमेंट क्लिंकर का अमाउंट जो भी होता है उसको हम रिड्यूस कर रहे होते हैं। अब पोज़ोलाना हम कितना यूज़ करेंगे, हम पोज़ोलाना कितना यूज़ करेंगे तो सीमेंट का जो भी कुछ वेट होता है उसका 40% अप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% हम पोज़ोलानिक मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। बराबर है। तो ये हमारा है पोज़ोलाना। अब इनिशियल स्ट्रेंथ जो होती है, हमारी इनिशियल स्ट्रेंथ जो होती है लेस देन ओपीसी। बराबर है। पीपीसी की जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की इनिशियल स्ट्रेंथ जो होती है वो ओपीसी से कम होती है, बट फाइनल स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है ओपीसी से। अपनी फाइनल स्ट्रेंथ जो भी होती है वो ओपीसी के एकदम बराबर की होती है पीपीसी की। तो ये हमारा है पोज़ोलाना। अब हम देखते हैं कौन सी इंडस्ट्री से हमें मिलता है पोज़ोलानिक मटेरियल। तो थर्मल पावर प्लांट से मिलता है हमें फ्लाई ऐश, ब्रिक प्रोडक्शन से वेस्ट मिलता है हमें सुर्खी, और आयरन प्रोडक्शन में से हमें मिलता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो यहाँ पर ये तीनों मटेरियल जो है वो पोज़ोलानिक मटेरियल है जो कि थर्मल, ब्रिक और आयरन के वेस्ट प्रोडक्ट है, हम देख सकते हैं। बराबर है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज पोज़ोलानिक एक्शन। पोज़ोलानिक एक्शन जो है वो क्या होती है। पोज़ोलाना इटसेल्फ जो होता है, पोज़ोलाना इटसेल्फ होता है उसे कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम यहाँ पर सोचेंगे कि सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो हम पोज़ोलाना का क्यों यूज़ करते हैं। बट जब भी उसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तब वो जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोसेस करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोसेस करने के बाद वो बनाएगा CSH जेल। CSH जेल का फुल फॉर्म है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल की प्रॉपर्टी जो है वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है और वो हमारी सीमेंट पेस्ट को स्ट्रेंथ देता है। तो उसके कारण हमें सीमेंट पेस्ट को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं पोज़ोलानिक एक्शन। तो पोज़ोलानिक एक्शन को हम एक एज इक्वेशन समझने की ट्राई करते हैं। तो पोज़ोलाना है प्लस वाटर है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके कारण हमें CSH जेल मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख लें कि CaOH ट्वाइस जो है, CaOH ट्वाइस जो होता है वो एज ए विलन काम करता है। क्यों विलन बोला मैंने, क्योंकि उसके कारण जो है वो हमारा वॉइड्स इंक्रीज करेगा। CaOH ट्वाइस होता है वो पेस्ट में, और वॉइड्स इंक्रीज होने के कारण जो है क्रैक के चांसेस होते हैं, और क्रैक होने के कारण रेनफोर्समेंट जो होता है वो उसका कोरोजन होता है। तो पोज़ोलाना क्या करता है, पोज़ोलाना जो है CaOH ट्वाइस को भी रिड्यूस करता है। तो इसके कारण उसका दूसरा बेनिफिट हो गया कि CaOH ट्वाइस का अमाउंट भी पोज़ोलाना रिड्यूस करेगा। तो ये हमारा दूसरा बेनिफिट है। अब हम देखते हैं कि वाई वी यूज़ द पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बिकॉज इट्स फाइनर साइज। इसकी साइज़ जो है वो फाइन है, और फाइन होने के कारण हम जानते हैं कि परमिएबिलिटी को रिड्यूस करेगा। परमिएबिलिटी रिड्यूस होने के कारण हम उसको एज ए वाटर टाइट स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इकोनॉमी अचीव। तो हमने देख लिया कि वेस्ट प्रोडक्ट को हम एज अ सीमेंट प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण इकोनॉमी तो अचीव होगी ही। रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो क्या होता है कि जब भी हम सीमेंट की प्रोसेस वाटर के साथ करते हैं तो उसके दौरान जो है उस प्रोसीजर को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। उसके कारण जो है हीट डेवलप होती है, और हीट डेवलप होने के कारण वहाँ पर क्रैक होने की चांसेस होते हैं। बट ये अपना पोज़ोलाना जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी कम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है पोज़ोलाना यूज़ करने की कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करेगा और उसके कारण क्रैक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। रेजिस्ट अगेंस्ट द केमिकल अटैक के सामने भी ये हमें प्रोटेक्शन देगा। तो उसके कारण पोज़ोलाना बहुत ही बेनिफिट देता है। बराबर है। तो ये कुछ उसके बेनिफिट थे, और कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने बेनिफिट के साथ ही बता दिया है।